Good morning, dear students. Today we will continue with the introduction of the clinical laboratory. In last lecture, we talked about origin and concept of the clinical laboratory. What is a clinical laboratory, and the name of the some popular clinical laboratories. In today's lecture, we start with evolutions of the clinical laboratories. तो in 1869 जो हमारी फर्स्ट लेबोरेटरी पब्लिश हुई, दैट इज फर्स्ट क्लिनिकल लेबोरेटरी जो पब्लिश हुई, वो हमारी फर्स्ट क्लिनिकल लेबोरेटरी पब्लिश हुई बेल्स डायग्राम बाय डॉक्टर जेम्स बीलर. Then 1873 में two clinical laboratories published हुई. First one is Repertory of Eyes by Dr. Darius. Second one is Desires and Emergence by Dr. Gunsel. Then 1879 में two clinical laboratories published हुई, that are Repertory of Fevers by Dr. S.C. Allen. It is one of the popular clinical laboratory, especially related to fever cases. Then second one in 1879 is Repertory of Food Sweat by Dr. O.M. Doherty. Then 1880 में two repertories published हुई. First one is Repertory of Modalities by Worcester. And second is Repertory of Respiratory Organs by Dr. Lutze. Then 1882 में one fever repertory published हुई by Dr. W.A. Allen, that is Repertory of Intermittent Fevers, another popular repertory in the cases of intermittent fever. Then 1883 में two clinical repertories construct हुई. First one is Sensation as a by Dr. Holcomb, and second one is Uterine Therapeutics by Dr. Henry Minton. It is also called Minton's uterus. एंड जैसे इसका नेम है, नेम से हमें सजेशन मिलता है कि इसमें यूट्रस से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स मेंशन है विद द ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स. और डॉक्टर मिंटन ने, हेनरी मिंटन ने बहुत अच्छा वर्क किया यूटेराइन डिसीज से रिलेटेड, और एक ऐसी रेपर्टरी कंस्ट्रक्ट की जिसमें यूटेराइन डिसीज से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स मेंशन है विद द ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स. देन 1884 में एक क्लिनिकल रेपर्टरी पब्लिश हुई विद द नेम ऑफ रेपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय डॉक्टर ली एंड क्लार्क. Then 1892 में Repertory of Digestive System published हुई by Dr. Anne Mitchell. Then 1894 में 6 clinical repertories published हुई. First one is Repertory of Rheumatism by Dr. Perkins. Second one is Repertory of Therapeutics of Respiratory System by Dr. Dan Moore. Third one is Repertory of Rheumatism by Dr. Pulford. Fourth one is Repertory of Eczema by Dr. C.F. Mills. Fifth is Repertory of Headaches by Dr. Nair, and sixth is Repertory of Appendicitis by Dr. Jenny. 1894 में ये 6 clinical repertories published हुई. Then 1896 में Repertory of Neuralgia by Lutze, ये इसका publication हुआ और use में. Then 1899 में Repertory of Urinary Organs, this is also called Morgan's Urinary Organs by Dr. A.R. Morgan. ये भी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत अच्छी रेपर्टरी है और पॉपुलर रेपर्टरी है जिसको हम फर्दर क्लासेस में आगे डिस्कस करेंगे. देन 1904 में क्लास क्लिनिकल रेपर्टरी पब्लिश हुई जो वन ऑफ द पॉपुलर जनरल क्लिनिकल रेपर्टरी है. देन 1906 में 4 रेपर्टरीज कंस्ट्रक्ट हुई जिसमें से फर्स्ट है रेपर्टरी बाय डॉक्टर पी.एफ. क्यूरी. सेकंड इज Repertory part of Views Special Pathology. Third one is Repertory of Respiratory Disease by Dr. Ness. And fourth, the last for the year of 1906, the Repertory of Mastitis by Dr. Gunsel. Then 1908 में another clinical repertory published हुई by Dr. Seeds, और उसी के नाम पे उसको कहा गया Seeds Clinical Repertory. Then 1927 में डॉक्टर O.E. बोरिक ने एक बहुत अच्छी जनरल क्लिनिकल रेपर्टरी पब्लिश की जो बहुत पॉपुलर हुई और बहुत यूज में आई. दैट इज क्लिनिकल रेपर्टरी बाय डॉक्टर O.E. बोरिक. देन 1931 में बोगस टाइम्स ऑफ रेमेडीज पब्लिश हुई बाय डॉक्टर C.M. बोगर. तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ रेपर्टरी. हमने देखा 1869 से लेकर 1931 तक बहुत सारी क्लिनिकल रेपर्टरीज पब्लिश हुई. अगर हम इन क्लिनिकल रेपर्टरीज को समझना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, इनको यूज करना चाहते हैं,
तो हमें एक सीक्वेंस में इनकी स्टडी करनी होगी, क्योंकि ये बहुत सारी है, तो अलग अलग सभी रेपर्टरीज को रिमेम्बर रखना, याद रखना या समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी प्रीवियस क्लासेस में, रेपर्टरी के प्रीवियस क्लासेस में, कि रेपर्टरीज को फिर आगे क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू क्लॉसिटी, अकॉर्डिंग टू टाइप। तो क्योंकि उनको स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको क्लिनिकली यूज करने के लिए उनको क्लासिफाई किया गया। ऐसे ही क्लिनिकल रेपर्टरीज भी बहुत सारी हो गई हमारे पास, इसलिए इनको समझने के लिए इनको भी क्लासिफाई किया गया। तो वो क्लासिफिकेशन इस तरीके से है कि सबसे पहले क्लिनिकल रेपर्टरीज को सब डिवाइडेड किया गया 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज ऐसी क्लिनिकल रेपर्टरीज जो होल बॉडी से रिलेटेड है, मीन्स ऐसी क्लिनिकल रेपर्टरीज जिसमें होल बॉडी से रिलेटेड सारे रूब्रिक हैं, मीन्स हेड टू टो। उसमें हेड से रिलेटेड भी सिम्टम्स हैं जिनके रूब्रिक्स कंस्ट्रक्शन है, आई से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड, स्लिप से रिलेटेड और एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड और हमारी जनरलिटीज से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स मेंशन है। तो ऐसी क्लिनिकल रेपर्टरीज को हम जनरल क्लिनिकल रेपर्टरी कहते हैं, जो कवर करती है हमारे होल बॉडी को। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल रेपर्टरीज अपेंडेड टू बोरिक्स मैथमेटिका, बोरिक की क्लिनिकल रेपर्टरी जो मैथमेटिका के साथ पब्लिश है। एंड अनदर एग्जांपल क्लिनिकल रेपर्टरी बाय डॉक्टर J.S. Clarke. Then this is the first division of the clinical repertoire. Second division ऐसी क्लिनिकल रेपर्टरीज जो रीजन्स को कवर करती है, और ये रीजन्स होंगे हमारे या तो कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन या क्लिनिकल कंडीशन। तो कवरिंग द रीजन वाली जो क्लिनिकल रेपर्टरीज है, ये ऑल्सो कॉल्ड रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरी और रीजनल रेपर्टरी। इनको हम रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरी भी कहते हैं कॉमनली, और रीजनल रेपर्टरी भी कह देते हैं कॉमनली। इनको फर्दरली 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया गया। ऐसी रीजनल रेपर्टरीज जो क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड है, और सेकंड वन ऐसी रीजनल रेपर्टरीज जो किसी स्पेशल पार्ट से रिलेटेड है। तो अगर क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड है तो ऐसी रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरीज या रीजनल रेपर्टरीज इज कॉल्ड रीजनल रेपर्टरीज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल कंडीशन। And second one, regional repertories related to special parts. So first one is regional repertories related to clinical condition. For example, Robert's rheumatic medicines, Bell's diarrhea, Allen's intermittent fever. ये 3 important example है। इसमें से 2 important repertory के नाम है Bell's diarrhea and Allen's intermittent fever, जिनको further classes में आगे discuss करेंगे। Then regional repertories related to the special parts. For example, Morgan's urinary organs, another important repertory, Minton's uterus, very important repertory, and Barresides। तीनों ही बहुत important repertories हैं और further classes में हम उनको discuss करेंगे। तो नेम ही सजेस्ट करता है कि Morgan's urinary organs में urinary organs से related सारे rubrics mention है with the group of medicines। Minton's uterus में uterine सिस्टम से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स हैं, चाहे वो ल्यूकोरिया हो, चाहे वो लोकिया हो, चाहे वो हेमरेज हो, चाहे वो मेनार्की हो, चाहे मिनोरेजिया हो, चाहे अबॉर्शन हो, तो सारे रिलेटेड रूब्रिक्स इसमें मेंशन है। सेम इन बेरिसाइड, आई से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स मेंशन है विद द ग्रुप ऑफ मेडिसिंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रेपर्टरीज कि इन्होंने इन्हीं की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग या सिस्टम से रिलेटेड चलते हुए मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन भी कंसल्ट किया है और रूब्रिक फॉर्मेशन भी कंसल्ट किया है कि हम यहाँ रेपर्टोरियल टोटलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको भी समझाया है। जैसे बेल्स डायरिया में उन्होंने स्टूल से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स लिए हैं और उनका जो टोटलिटी कंस्ट्रक्ट करने का अरेंजमेंट है वो भी इसी तरीके से, जैसे सबसे पहले स्टूल के टाइप ले लिए हमने, फिर उसका कैरेक्टर ले लिया, देन उसकी मॉडलिटीज ले ली और देन उसकी पर्टिकुलर मॉडलिटीज ले ली। तो इसी तरीके से हम आने वाले लेक्चर्स में हम इन रेपर्टरीज को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही क्लासिफिकेशन पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लिनिकल रेपर्टरीज के स्कोप एंड लिमिटेशंस।
कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज का स्कोप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ क्लिनिकल लेबोरेटरीज को यूज कर सकते हैं। अगर हम केसेस में यूज करते हैं, रेप्यूटराइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो कौन से केसेस में, किस टाइप के केसेस में हम इनको यूज कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा लिमिटेशंस देखेंगे कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज की कहाँ कहाँ लिमिटेशंस हैं, हम इसको किस लिमिट तक यूज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ हम इनको यूज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।